Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम भजन संहिता Psalm 132 verse 10 till last हमने लिया है। इन कैथलिक बाइबल इट्स फ्रॉम verse 11 till last. I'll read in Hindi and in English as well. आइए हम परमेश्वर का पाक कलाम पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लाएंगे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, Yahweh Pita Parmeshwar ji, we are so thankful to you for your unconditional mercy and blessing. Thank you for the word of God today we had received by your grace and mercy. Your will, Father Lord, make us able to meditate on the word of God and receive abundant blessing which you want us to give. And you had elaborated that on maximum chapters in the Bible. Father Lord, we are so thankful to you for your unconditional love. In Jesus' precious name, we give you thanks and praise always and forevermore, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and Amen. Bhajan Sita, chapter 32, verse 11 till last in Catholic Bible. प्रभु ने शपथ खाकर दाऊद से प्रतिज्ञा की वह की है, वह अपना वचन भंग नहीं करेगा। मैं तुम्हारे वंशजों में से एक को तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा। यदि तुम्हारा पुत्र मेरे विधान पर चलेगा और मेरे दिए हुए नियमों का पालन करेगा, तो उनके पुत्र भी सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। क्योंकि प्रभु ने सिय्योन को चुना और अपने निवास के लिए चाहा। यह मेरा स्थिर स्थायी निवास है। मैं यही रहूँगा, क्योंकि मैंने सिय्योन को चुना है। मैं यहाँ के निवासियों को भरपूर भोजन प्रदान करूँगा। मैं इसके दरिद्रों को रोटी देकर तृप्त करूँगा। मैं इसके याजकों को कल्याण के वस्त्र पहनाऊँगा। इसके भक्त जन उल्लास के गीत गाएंगे। मैं यहाँ दाऊद के लिए एक शक्तिशाली वंशज उत्पन्न करूँगा। अपने मसीह के लिए एक प्रदीप जलाओ। उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा, किंतु उसके मस्तक पर मेरा मुकुट शोभायमान होगा। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। I'll read in English. Psalm 132 verse 10 till last from Protestant Bible. You made a promise to your servant David. Do not reject your chosen king, Lord. You made a solemn promise to David, a promise you will not take back. Lord said, I will make one of your son king, and he will rule after you. If your sons are true to my covenant and to the command the Lord gave them, their sons also will succeed you for all time as king. The Lord has chosen Zion. He wants to make it his throne, his home. There is where the Lord, live forever. This is where I want to rule. The Lord wants to rule. The Lord will richly provide Zion with all she need. The Lord will satisfy her poor with food. The Lord will bless her priests in all they do, and her people will sing and shout for joy.
Here I will make one of David's descendant a great king. Here I will perceive the ruler of my chosen king. I will cover his enemies with shame, but his kingdom will prosper and flourish. This is the word of God. Praise be to God. Amen. So to all my brothers and sisters, आज एक बार फिर हमें परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में से एक बार फिर ये हमारे को बताया या हमारे को एहसास कराया, हमारे को जताया, आई डोंट नो वेदर इज द राइट वर्ड और नॉट, हमें ये बताया परमेश्वर ने फिर कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने अपने पवित्र कलाम में दाऊद से ये भी कहा कि यदि तुम्हारे पुत्र मेरी विधान पर चलेंगे और मेरे दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो उनके पुत्र भी सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। इन English it's written, if your sons are true to my covenant and to the command I give them, their sons also will succeed you for all time as a king. बहुत सी बार हमने देखा है ओवर द नाइट राजा बदले जाते हैं, प्रजा बदली जाती है, रातों रात राजे रंक हो जाते हैं और रंक राजे बन जाते हैं। इसमें कोई भी किसी भी अदर सोर्स या पावर का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता, ना ही करता है, until unless the God the Father यहोवा परमेश्वर want anybody to succeed। और ये सब कैसे होगा? यहां पे लिखा है यदि तुम मेरे विधान पर चलोगे, मेरे दिए हुए असूलों पर चलोगे, then only you'll receive abundant blessings। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं that we should walk according to the word of God in this worldly life। We should love each other, we should respect each other, we should respect our parents, we should respect our grandparents, we should respect our elders। बहुत सी बार आप अपना आप खो बैठते हैं जब आप एक जो दहलीज है बात करने की उसको पार कर जाते हैं। बट वी शुड नॉट लूज आवर सेल्फ कंट्रोल इन एनी मैनर, इन एनी सिचुएशन। परमेश्वर हमसे यही कह रहे हैं कि जिस देश में, जो देश यहोवा परमेश्वर अपने बच्चों को देंगे, जहां पे आप एज एक कमांडर रहेंगे या एक सीनियर पर्सन रहेंगे या एक गली मोहल्ले के आप प्रधान बने रहेंगे या एक जिम्मेवार पर्सन बने रहेंगे, तब परमेश्वर कह रहे हैं कि वहां पे आप अपनी जिम्मेवारी संपूर्ण रूप से पूरी कर सकेंगे, क्योंकि वहां पे कोई भी गरीब नहीं रहेगा। अगर कोई गरीब है तो उसको कभी खाने से भूखा नहीं रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा आई विल सेटिस्फाई हर पुअर्स विद फूड, आई विल ब्लेस हर प्रीस्ट इन ऑल दे डू एंड हर पीपल विल सिंग एंड शाउट फॉर जॉय। ब्लेस हर प्रीस्ट मीन्स जब परमेश्वर का दास अपने जो बच्चे परमेश्वर ने उनको दिए हैं परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, जब वो परमेश्वर का पाक कलाम उन बच्चों तक पहुंचाएंगे, अपनी कलीसिया में डिलीवर करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा उन पे उतरेगा और परमेश्वर की मर्जी के द्वारा परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे और वचन को समझने की शक्ति और सामर्थ्य देंगे, सो दैट as the word of God will be able to live our life accordingly in this worldly life। आगे लिखा है I will cover his enemy with shame। आपके दुश्मनों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। Doesn't matter आपके जीवन में कैसी सिचुएशन है, make sure and remember one thing only, we are victorious and we will always and forevermore be victorious in the living name of Jesus Christ
with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, by the strength of यहोवा परमेश्वर। जब यहोवा परमेश्वर ने हमें ये वायदे किए हैं तो हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में इधर उधर क्यों ताकते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें परमेश्वर के पाक कलाम की नॉलेज नहीं है। हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर के पाक कलाम में कहाँ पे क्या चीज लिखी है। हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर का पाक कलाम ना केवल बिस्तरों में, गद्दों के नीचे, ना शेल्फ पे, ना कबर्ड्स में रखना है, बल्कि उसको खोल के पढ़ना भी है। क्योंकि समय आने वाला है मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, जिस दिन आपसे ये पाक कलाम छीन लिया जाएगा और आप इस पाक कलाम को पढ़ने के लिए तरसेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के, काइंडली रीड द वर्ड ऑफ गॉड मोर एंड मोर एंड मोर एंड फीड इट इन योर माइंड सो दैट आपको परमेश्वर का पाक कलाम जुबानी याद रहे। जब जरूरत हो उसी समय आप परमेश्वर के वचन को दवाई की तरह अपनी आत्मा में पढ़ें और मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर आपको विजयी ही करेंगे। आगे लिखा है, बट हिज किंगडम विल प्रॉस्पर एंड फ्लोरिश। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन हिंदी, उसके शत्रुओं को लज्जित होना पड़ेगा किंतु उसके मस्तिष्क पर मेरा मीन्स यहोवा परमेश्वर का हमारे मस्तिष्क पर मुकुट शोभायमान होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे यहोवा परमेश्वर फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit and love of Mother Mary. Father Lord, every day we come to you and we ask for your blessing and your power of strength and wisdom and knowledge. Make us able to stay healthy, make us able to deliver the word of God to others fearlessly. Father Lord, make us able to be victorious, as the word of God says, we are victorious and we will always and forevermore be victorious, क्योंकि मेरे यहोवा परमेश्वर ये सिर का ताज आप ही का दिया हुआ है, किसी और का नहीं। धन्यवाद करते हैं तहे दिल से एक बार फिर मेरे यहोवा परमेश्वर फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। Bless me and my wife, our kids, our family members, and every believer, pastor, preacher, with the presence of Holy Spirit of protection and warrior angel, wisdom and knowledge, with a very good health and a long-lasting life, especially with a very strong faith in the mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ, who lives and reigns, one God, now and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins. Save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy. In the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my wife, our kids, our family members, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, and with our coming generation, now and forevermore. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.